Kindly rise. Let us find ourselves in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Behold the handmaid of the Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the Word was made flesh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of religion, made by his passion and cross, who brought the glory of his resurrection to the same Christ our Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, as we have come here, I would like to share about Psalms, what the Lord says. Sing aloud to God our strength. Make a joyful shout to the God of Jacob. Raise a song, strike the timbrel. Hallelujah. Hallelujah. आनंदी रहा आणि आमची शक्ती असलेल्या देवासमोर गाणी गा. इस्रायलच्या देवासमोर आनंदाने ओरडा. संगीताची सुरुवात करा. डफ वाजवा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. How many of you all are excited and joyful to be here?
Hallelujah. Show your hands to the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And as the Lord says, as the word of the Lord says, that shout for joy. Hallelujah. So are you all ready and are you all joyful today? Yes. Let's see a smile on your faces. Hallelujah. And let us welcome each other by saying you're blessed because you came. Let the smile cheer up the other person. Hallelujah. Blessed because you came. So all are blessed here. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. So let's see today. Let's just test this, okay? We were doing this earlier, so it just struck me, and I said, let's see. Today we'll say this. God is going to say all the time, every time, okay? So let's see how much powerful the women of the Lord are, and how much powerful the men of the Lord are. Hallelujah. Are you ready for the test? Yes. No using minds, okay? Okay. Now first the woman of the Lord, okay? God is good. All the time. Oh, it was very cold. Let's see. Now men of you, let's see. God is good. All the time. And all the time? God is good. Same I think, right? Now let's try it in Marathi, okay? Prabhusa Gauravaso, all the women. Prabhusa Gauravaso. Oh, that was powerful. Very nice. Praise the Lord. Ata ani sada sarvada, men. Men of you, but they are stronger. Hallelujah. Praise the Lord. I was thinking I'll tell the men, okay, that your voice is less. Please invite more of your friends next time. Hallelujah. Okay, so let's sing this song with joy in our hearts, with smile on our face. Let's praise the Lord with all of our hearts. Our life is in Him. Our strength is in Him. Our joy, He is our joy. Hallelujah. Let's make actions. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord.
want to praise you all of our lives. Lord, we want to thank you, Lord, for your presence in this place of ours. My dear brothers and sisters, as we pray, as we praise Him, He enthrones Himself on our praises. Hallelujah. Hallelujah. And as the book of Acts of Apostles says, there were two people in the prison who were praising the Lord in spite of a very difficult situation they were in. कठीण परिस्थितीत होते, पण ते दोघं जे आहेत ऍक्ट्स मध्ये लिहिले आहे प्रेरिताचे कार्यामध्ये की ते प्रभूची स्तुती करत होते. ते कोण आहेत? हालेलुया. ते तुरुंगात होते आणि त्यांना जे आहे बंधनात बांधून गेले, त्यांना बांधले होते. हालेलुया. पण तरी ते रात्रभर जे आहे ते प्रभूची स्तुती करत होते. Praise the Lord. Praise the Lord. They were praising the Lord, and all of the prisoners and everyone was listening. What they are doing? They might be wondering. They are in the prison and still they are praising the Lord. But what happened is there came an earthquake. Bhumikampa zala. Hallelujah. Hallelujah. And what happened is the doors of the jail were opened. Praise the Lord. Praise the Lord. And the chains which they were bound, they were loosened. Praise the Lord. Praise the Lord. Nobody could have imagined, my brothers and sisters. Hallelujah. Hallelujah. Maybe we have come here. आम्ही आलो असणार. खूप काही घेऊन इकडे. खूप काही टेन्शन्स, खूप काही भीती आमच्या मनात असणार. आमच्या फॅमिलीमध्ये प्रॉब्लेम्स असणार. असं असू शकते की like your partner, your spouse may be having some problem, job problem, financial problem. There will be many things. But let us praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In that prison, in that chains that we are bound in, let us praise the Lord. And there will surely be an earthquake. Not a real one, but truly the Lord is going to set us free. Hallelujah. Hallelujah. So are you all ready to experience the freedom of the Lord? Yes. Hallelujah. Hallelujah. For all the chains to be loosened, the doors where we see that they can't be opened, की दरवाजे ते बंद आहेत, उघडणार नाही, पण प्रभू उघडणार आहे आज. हालेलुया. तर आम्ही प्रभूची स्तुती करूया परत एकदा मोकळेपणाने. हालेलुया. हालेलुया. सहभागी व्हा आणि प्रभूचा जे फ्रीडम आहे त्याचा अनुभव घ्या. हालेलुया. Let's clap our hands. Yeshua,
you are experiencing the presence of the Lord. Hallelujah. Let us just gently sit in the presence of the Lord. Let us close our eyes. Let us close our eyes. आमचे डोळे मिटून येऊया प्रभूच्या जवळ. जसे आम्ही स्तुती करतो, आम्हाला मुक्तीचा अनुभव येतो. Lord, we thank you. We thank you, Lord. Truly believe you are working in us, Lord. You are the Lord who never tires, Lord. प्रभू, तुला कधी पण थकवा येत नाही, पण तू आमच्या जीवनात सतत कार्य करत राहतो. आम्हाला ठाऊक नाही त्यावेळी सुद्धा तू आमच्या जीवनात कार्य करतोस. खरोखर प्रभू, आम्हाला मुक्ती मिळाली आहे तुझ्या रक्ताद्वारे. Lord, you paid such a big price, O Lord, for our sins. O Lord, we come closer to you. Truly, Lord, as you're setting us free from all the chains, भीती, टेन्शन, सगळं काही समर्पण केलं आहे तुला. आणि आता तुझ्या शांतीचा अनुभव आम्हाला लाभत आहे. तुझा स्पर्श आम्हाला लाभत आहे. All those who want to worship the Lord, worship Him in spirit and in truth. आज्ञाने आणि सत्याने त्याची आराधना करूया यावेळी. आपलं हृदय त्याला समर्पण करूया. Oh,
Be still and know that I am God. शांत रहा आणि जाणा की मी प्रभू आहे. Holy Spirit, Lord, come and fill our hearts. Draw us, Lord, close my more closer to you. Prepare our hearts, O Lord, that we may listen to your word, O God. We call upon you, O Holy Spirit. Come in our lives. मेरे जीवन में आओ, अपनी शक्ति ले मेरे जीवन में आओ, आओ आत्मा मेरे जीवन अपनी शक्ति मेरे जीवन में आओ. तू है जीवन का जल, न सूखने वाला झरना, सांत्वना राजो मुझ पे तेरा. तू है जीवन का जल, ना सूखने वाला झरना, सांत्वना सलाका. अब राजो मुझ पे तेरा. आओ पावनात्मा मेरे जीवन में आओ, अपनी शक्ति ले मेरे जीवन में आओ. Lord, we thank you. And we surrender, Lord, the remaining time, O Lord, as our brother will be sharing your word. Bless you, O Lord, bless. प्रभु छू लेना प्रभु हमारे भाई जो शब्द बांटने वाले हैं, प्रभु आपका वचन बांटने वाले हैं. आपको हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो हम अनुभव कर रहे हैं. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज द लॉर्ड. Let's give a mighty hand to him. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. तर आज आपल्यामध्ये बंधु पतिराज यादव हमारे बीच में उपस्थित हैं और आपण खूप जण त्यांना ओळखत असाल. तर बंधु पतिराज हे मूळ यूपीचे आहेत आणि त्यांनी ख्रिस्ती धर्म अनेक वर्षांपूर्वी स्वीकारला. त्यांचं संपूर्ण कुटुंब ख्रिस्ती झालेलं आहे. त्यांना 9 मुलं आहेत. 8 बच्चे हैं उनके
और उनके भाई के भी बच्चे उनके साथ हैं और सब विश्वास में हैं, सब बपतिस्मा ले चुके हैं कैथलिक चर्च में। और भाई बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। उनके जो यूपी के लोग हैं या नॉर्थ के जो लोग हैं उनके बीच में बोईदापाड़ा उस इलाके में प्रभु का कार्य वो कर रहे हैं और बहुत साल से प्रभु के अनुभव उनको मिला है और उनका कार्य कर रहे हैं। वो VST यानी कि वसई डायसिस का जो वसई सर्विस टीम है उसके भी वो मेंबर हैं और वहाँ पर भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उनके द्वारा प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार तालियों से प्रभु के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कोई कुछ करता है उसके पीछे किसी का हाथ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जिसने वहां मुझे खड़ा किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म यानी मुझे ताबूर आश्रम ने प्रभु ने छुआ। मातृधाम आश्रम वाराणसी में मुझे दूध पिलाया गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि वसई में जिन्होंने मुझे अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, फ्रांसिस अंकल 1 मिनट के लिए मेरे साथ खड़े रहेंगे, जिन्हें मैं अपना आध्यात्मिक पिता मानता हूं। 2001 में जब मैं पहली बार ग्रेस मिनिस्ट्री में प्रार्थना के लिए आया, बिल्कुल नया था। उस समय अंकल की पहली मुलाकात हुई। तब से अब तक जब मिले हैं तब उन्होंने वही काम किया है कि मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, मैं भूल जाता था कि अंकल इधर ही रहते हैं, लेकिन अंकल मुंडी नीचे करके ढूंढते रहते थे, कैसे हैं मेहरारू, कैसे बा लड़कियां, कैसे हैं, कुछ समझ में नहीं आया ना, औरत बच्चे कैसे हैं, कैसे चल रहा है प्रार्थना, कैसे चल रही है। अगर भूल से या तो किसी कारणवश एक सोमवार नहीं आया, क्या हो गया, कुछ तकलीफ तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, प्रार्थना कमजोर नहीं होनी चाहिए। कुछ भी पीड़ाएं बताता था तो बोलते थे मन लगाकर प्रार्थना करो, जोर से प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो। 1 हफ्ता पहले भी हम साथ में बैठे थे, वही वचन मुझे दिए जा रहे थे कि जो प्रभु की खोज में है उसे विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और उन लोगों को प्रतिफल देता है जो उसकी वजह से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, तो जो ब्रदर ने बताया कि मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूं, उसमें बहुत कुछ ग्रेस मिनिस्ट्री का हाथ है और कार्य है। जो इनसे सीखा हूं और लोगों से सीखा हूं वही बांट रहा हूं। आज आप लोगों के सामने मैं विषय लेकर आया हूं, हृदय की कठोरता। मैंने इस विषय पे कभी बात नहीं किया है। ब्रदर रेमंड ने मुझसे कहा कि आप एक विषय बताइए जो आपको बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हो। मैंने रात भर प्रार्थना किया, रात को प्रार्थना किया, सो गया। सवेरे सो को उठा तो मेरे मन से वचन आने लगा, हृदय की कठोरता। इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय हालेलुया 3 वचन 15 और 16। धर्म ग्रंथ कहता है, ओ यदि आज तुम उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले विद्रोह के समय में हुआ था। जैसा कि पहले विद्रोह के समय में हुआ था। जरा विचार करने की बात है कि विद्रोह का समय कब था। इसे आगे हम पढ़ना चाहेंगे। जिन लोगों ने वाणी सुनकर विद्रोह किया वे कौन थे? निश्चय ही वे सब लोग थे जो मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश से निकलकर आए थे। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मूसा के नेतृत्व में मिस्र से निकलकर कौन आए थे? इस्राएली प्रजा। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कब विद्रोह नहीं किया? हमको लगता है पहले दिन से और आखिरी दिन तक वो विद्रोह करते रहे, जबकि परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने बहुत ही नजदीक से देखा। जब वो मिस्र से निकले, लाल समुद्र के किनारे थे, कोई रास्ता नहीं था और फिरौन की सेना सामने से हथियार लेकर आ रही है। डरे हुए थे, घबराए हुए थे। मूसा पर भुनभुनाने लगे कि मुझे यहां मरने के लिए लेके आए हो, हम वहां क्या मरते पूरा था। मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने कहा तेरा हाथ तो बढ़ा। समुद्र के साथ तेरा हाथ बढ़ा और लकड़ी लिया उनसे बढ़ा, और क्या हुआ? समुद्र सूख गया। वचन कहता है कि पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। प्रभु की प्रजा सूखी भूमि, सूखी भूमि, कीचड़ भी नहीं था, पार हो गए, आगे बढ़े। शायद जो राशन पानी लेकर निकले थे खत्म होने लगा, फिर से भुनभुनाने लगे, विद्रोह करने लगे। प्रभु ने मूसा से कहा कि मैं रोज खाना दूंगा। कितना दूंगा? कितना दूंगा? रोज, रोज सवेरे। हमारी आपकी तरह उनको काम पे भागना नहीं पड़ता था, कुछ जमा करने की जरूरत नहीं थी। रोज सवेरे सो के उठते थे, रोज का इकट्ठा करके खाते थे। वचन कहता था जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनके पास ज्यादा नहीं निकला, और जिन्होंने कम बटोरा उनके पास कम नहीं हुआ। ऐसी परिस्थिति में वो आगे बढ़ते रहे, विद्रोह करते रहे। 40 साल तक उनके विद्रोह का दिन रहा। हम निर्गमन ग्रंथ और गणना ग्रंथ में इसका विवरण विस्तार से सुनते हैं, लेकिन नहमिया कहता है कि मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं मेरे पूर्वजों के लिए पश्चाताप करता हूं। उन्होंने आपका विद्रोह किया, उन्होंने आपकी आवाज को सुनना नहीं चाहा, अपने हृदय को कठोर किया और बार बार भुनभुनाए आपके विरोध गए। और यहां तक ही नहीं, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने देखा कि दिन को उनको चलाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बादल, और रात को अग्नि का खंभा, उसके बीच उसके साथ प्रभु चल रहा है। फिर भी विद्रोह पर विद्रोह रहा है। आखिर में उन्होंने क्या बनाई? बछड़े की मूर्ति, बछड़े की मूर्ति बनाई, पूजा किया, नाच किया, गाना किया। यही हमारा देवता है। हालेलुया। विद्रोह का दिन। हमें ऐसा सोचकर लगता होगा कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर को इतने नजदीक से देखा, परमेश्वर के कार्य को इतने नजदीक से देखा, और इसके बाद भी वो विद्रोह करते रहे। इसका अर्थ है क्या बेवकूफ लोग थे? आज हम ज्यादा सियाने हैं। हम लोग भी बहुत सारा प्रभु का कार्य देखते हैं, बहुत सारा प्रभु का अनुभव करते हैं। मेरे एक मित्र अंकल भी गुजर चुके हैं। जब मैं वसई जाता था तो बोलते थे, यादव जी 50 साल पहले की वसई करवी लकड़ी की थी, आज बंगले यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इन बंगलों के पीछे अगर किसी का हाथ है तो प्रभु यीशु का हाथ है। किसी से लोगों ने पाया है तो उसकी आशीष पाई है। वो बोलते थे कि जब 7 बजता था हर घर में घुटने टिक जाते थे, चर्च का घंटा बजता था हर घर में घुटने टिक जाते थे, और सब घर में रोसरी की प्रार्थना शुरू हो जाती थी। आज क्या है? अधिकांश घर में रोसरी बंद हो गई है। कुछ साल पहले की बात, थोड़ा सा जागृति आई है 10-12 साल में। जब 15-20 साल पहले लोगों के घर में मैं जाता था, पूछता था बाइबल लेके आओ, एक जन ढूंढने जाता था, वो नहीं लौटा तो दूसरा ढूंढने जाता था, तीसरा लेकर लौटता था तो उसको इतना घिसता था कि लगता है 1-2 साल से उस पे हाथ ही नहीं लगाया गया, मिट्टी जमी है। नहीं तो कई घर में ढूंढने से भी नहीं मिलता था। इसका अर्थ क्या है? यही है हृदय की कठोरता, यही है हृदय की कठोरता।
उन दिनों में अगर लोगों ने अपने हृदय को कठोर किया था, आज हम अपने हृदय को और कठोर कर चुके हैं। उनके साथ प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किया, वो जंगल में घूम रहे थे। प्रभु ने हमारे साथ जो कार्य किया है, हम अनेक प्रकार के साधन सुविधा का आनंद ले रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, कहना यह है कि हम कुछ भी कर लें, कितना भी आगे बढ़ लें, कोई भी तरक्की कर लें, अगर हम आध्यात्मिक तरक्की भूल गए तो बर्बादी निश्चित है। आध्यात्मिक तरक्की करना अगर भूल गए, यही हमारे हृदय की कठोरता है। अगर हम नियमित प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम हट गया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि जो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता, भाई बहन या किसी भी बातों को ज्यादा प्यार करता है, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। हमें परमेश्वर के राज्य योग के योग्य बनना है। हमें सबकी जरूरत है, भाई बहन की जरूरत है, माता पिता की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है, लेकिन उससे बढ़कर हमें परमेश्वर की जरूरत है। इस बात को हमें समझना है। हमारे जीवन में महत्व देना है परमेश्वर को। मैं बिल्कुल थक गया था, जैसा कि भाई ने बताया, मैं हिंदू परिवार से हूं। बहुत पूजा पाठ किया, परिवार बर्बाद हो रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। हिंदू अपने लिए, मुसलमान अपने लिए, क्रिश्चियन ने अपने लिए, सबने भगवान बना लिया है। मन बिल्कुल कठोर हो गया था। लेकिन जब मेरे मित्र ने मुझे ताबोर आश्रम के बारे में बताया, तो मुझे क्या लगा, 33 करोड़ देवी देवता हमारे पास हैं, इनके पास एक यीशु है, हमको क्या जरूरत है? मन की कठोरता। लेकिन जब और भी संकट से गुजरना पड़ा, दूसरी बार उनको मिला, मानिकपुर से ही अपने अनिल अलमेड़ा, उन्होंने बोला, यार तेरे को एक बार बोला ताबोर आश्रम जाने के लिए, क्या होता है, जाके तो आ। मुझे लगा ताबोर आश्रम में तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक एक व्यक्ति बोलता रहेगा। एक बार जाता हूं तो इसकी बोलती तो बंद होने दो। वो तो ठीक है, उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन मैं बोलने लगा। हालेलुया। समझ में नहीं आता था उन दिनों में क्या करें, कैसे करें। टूटी हुई कमर लेके जमीन पकड़कर उठता बैठता था। ऑटो थी, ऑटो ड्राइवर में था, लाइसेंस वैध था, लेकिन टूटी कमर के कारण रिक्शा नहीं चला सकता था। परिवार पूरा बेरोजगार हो गया था। एक भाई रिक्शा चलाता था, एक्सीडेंट में मर गया। पत्नी को अस्थमा था, डॉक्टर बोलते हैं एक फेफड़ा पूरा गया है, दूसरा 40%। 2-4 साल जितना जिंदगी इसकी है उतना ही मर जाएगी। 23 साल बीत गया। 23 साल बीत गया, अस्थमा की एक गोली नहीं खाई है उसने, और पूरा तंदुरुस्त है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, अनेक लोगों ने ऐसा चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में देखा है। लेकिन तब मैं पिघल गया, मेरे हृदय की कठोरता दूर हो गई। हमें एक लाइन सिखाई जाती थी पंडित जी के द्वारा, मम सब प्रिय मम सब उपजाए, सबसे अधिक मनुज मम भाई। पंडित जी आकर सिखाते थे कि परमेश्वर कहता है मुझे सब प्रिय है, मैंने सबको बनाया है, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उन दिनों में मैं जिस भगवान की प्रार्थना करता था, जो कहता था, जिनके बारे में कहा जाता था, मेरे समझ में आ गया कि वास्तव में ये है जिसने बनाया है और जो सबसे ज्यादा हमें आपको प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका हृदय कठोर हो गया है, आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आप को जांच लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए कि आपका हृदय कठोर हो गया है। मिशा के प्रति आपका लगाव नहीं है तो निश्चित ही आपका मन कठोर हो गया है।
अगर सालों साल आप पाप स्वीकार के लिए नहीं जाते हैं, निश्चित ही मन कठोर हो गया है। जो लोग दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, निश्चित ही मन कठोर हो गया है। कहना है कि हम अपने मन की कठोरता दूर करने के लिए प्रभु के पास जाएं। इब्रानी 4:16, हिब्रू 4:16, हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन अर्थात प्रभु के पास जाएं, जिससे हमें वह दया और कृपा मिले जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करे। अगर हमारा हृदय कठोर हो गया है, वह हमारे हृदय को पिघला देगा। हम उसके पास तो जाके देखें। पहले दिन उसने मुझसे सर हिला के बातें किया, मुझे बड़ा अजीब लगा, ये जादू मंत्र वाला है क्या? मैंने कहा प्रभु जी, आप तो 3 किले पर लटक रहे हो, सब लोग आपसे ही मांग रहे हैं, मेरा भी 2 काम कर दोगे क्या? उसने सर हिला के उत्तर दिया, मुझे बड़ा अजीब लगा। ये मूर्ति लकड़ी की, पत्थर की नहीं तो प्लास्टिक की हो सकती है, ये बात कर रही है, इसका अर्थ है कि इसमें जादू का, तंत्र मंत्र का कुछ मामला है। घर पे आया, अगले दिन मेरे लिए वही हुआ जो मैं बोल कर आया था और जो उसने उत्तर दिया था। हालेलुया, ताली बजाइए प्रभु के लिए। तो कहना है कि हम अपने मन की कठोरता दूर करें। सालों साल से हम प्रार्थना में आ रहे हैं, यदि अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इस कठोरता के बारे में फादर अनिल बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि 12 महीने नदी बह रही हो, 12 महीने पानी हो, उसमें से एक पत्थर निकालो, बाहर हथौड़ी मार के फोड़ो, उसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं होता है। ये है हृदय की कठोरता। हम 12 महीने प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन अपने आप को बदलने का अगर प्रयास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा, संदेश में क्या कहा? मन फिराओ, अपने मन को बदलो, अपने आप को बदलो, क्योंकि अपने आप को बदले बिना स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हमारे एक मित्र अपने आप को बताते हैं बोर्न कैथोलिक। तो बोर्न का मतलब ही पहले मैं नहीं समझता था, कई बार बोल दिया उन्होंने। एक बार एक इंग्लिश जानने वाले व्यक्ति से पूछा, उन्होंने बताया कि जन्म से क्रिस्तीय है। मैं 2-3 दिन के बाद उसको ढूंढ कर मिला। मैं बोला एक बात तो आज सुन ले मेरे भाई, कि कैथोलिक कोई जन्मता नहीं, कैथोलिक कोई जन्मता नहीं। अगर आपको ये भ्रम है कि आप कैथोलिक हैं, आपका जो उद्धार निश्चित है, तो आपकी भूल है और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपको कैथोलिक बनना पड़ेगा। 3 साल प्रार्थना और प्रयास के बाद मैंने फादर अनिल देव से कहा, स्वामी जी, क्योंकि मैं उनको स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पृथ्वीराज भाई, बपतिस्मा लेकर क्या करना चाहते हो? मैंने कहा क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ। बोले बपतिस्मा लेकर आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते। मैंने कहा तब? बोले एक काम करो, बाइबल का 3 चैप्टर नया नियम पढ़ दो। नया नियम पढ़ दो। मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो 4 दिन के लिए बाहर गए, मैं नया नियम 4 दिन में पढ़ लिया आश्रम में। 4 दिन के बाद जब वो लौटे, उन्होंने पूछा पृथ्वीराज भाई सवेरे नाश्ता के समय आपने बाइबल पढ़ा? हाँ स्वामी जी, पढ़ दिया नया नियम। मुस्कुराए, चुप रहे, चले गए। दोपहर में उन्होंने पूछा पृथ्वीराज भाई आपने नया नियम पढ़ा? हाँ स्वामी जी पढ़ा। थोड़े समय चुप रहे, मुस्कुराए, चले गए। चाय के टाइम फिर पूछते पृथ्वीराज भाई आपने नया नियम पढ़ लिया? मैंने कहा स्वामी जी आपको मैं 2 बार पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताता हूँ कि मैंने पढ़ लिया है। उन्होंने बोला लेकिन कुछ बताया नहीं कि आपने क्या पढ़ा है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्या पढ़ा है। पता तब चलेगा क्या पढ़ा है जब उसको आप अपने जीवन से लागू करोगे। जब पढ़ी हुई बातों को अपने जीवन में लागू करोगे तो पता चलेगा कि आपने पढ़ा है। नहीं तो आपने पढ़ा, रोज किताबें बहुत तरह के लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें लोग पढ़ते हैं। पढ़ना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। यदि आप इन वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे तो निश्चित ही आपका जीवन बदलेगा। रात को उन्होंने कहा कि अब 3 चैप्टर पढ़ के आना।
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7। और सवेरे फिर से मिलना। सवेरे फिर नाश्ता के समय में बड़े उत्साह से आया, 2-3 बार पढ़ लिया, रात में कम सोया। उन्होंने बोला पतिराज भाई पढ़ लिया? मैंने बोला हाँ पढ़ लिया। उन्होंने बोला क्या पढ़ा आपने? जो आप पढ़े हैं उसमें आप कहाँ हैं? मैंने कहा कहीं नजदीक दिखाई नहीं देता। बोले अभी आप जब तक उसके नजदीक नहीं आएंगे तब तक आप क्रिश्चियन नहीं बन सकते, चाहे कितनी बार कुछ भी कर लो। हालेलुया। पता नहीं कितने लोगों को ने पढ़ा है, किसको याद है? अगर नहीं पढ़ा है तो याद कीजिए, फिर से जरा पढ़िए। पढ़ा होगा तो फिर से आप पढ़िए। मत्ती 5, 6, मैथ्यू 5, 6, 7, जहां पे प्रभु ने कहा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, कहना यह है कि हम दावा करते हैं कि हमने इतनी रिट्रीट की है, हम इतनी बार कोटा गए, हम इतनी बार वेलंकनी गए, हमने इतना नवीना किया, लेकिन आपने अपने आप को कितना बदला है? क्या आप नवीना और रिट्रीट से पहले जहां थे वहीं है या तो वहां से नीचे उतरे हैं? अगर आपने अपने कदम को पीछे मोड़ा है, अपने आप को बदला है, तो आपकी रिट्रीट, आपकी नवीना विलंकनी यात्रा सफल है। अगर आपने कुछ अपने आप को बदला नहीं है, मेरे एक मित्र फादर एक उदाहरण देते थे, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि इस चर्च में भी कई बार आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने कोईता लेकर अपने भाई के पीछे मारने के लिए दौड़े और जाते जाते रास्ते में चर्च का घंटा बजा, उन्होंने घुटना टेका, प्रार्थना किया, फिर से कोईता उठा और फिर से उसके पीछे दौड़ पड़े। प्रार्थना को कुछ फायदा मिलेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 2, यहां पर सृष्टिकर्ता बोल रहा है। सृष्टिकर्ता सृष्टि से कह रहा है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोल रहा है। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोल रहा है। मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। मैंने अपने पुत्रों का पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। और आगे सृष्टिकर्ता आकाश और धरती से कह रहा है कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक के नाद से ही खाता है, लेकिन मेरी प्रजा मुझे नहीं समझती। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे आपके निर्माता प्रभु परमेश्वर का दुख है, ये उसकी पीड़ा है। वो अपने निर्मिति से कह रहा है, आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, मेरी बात को, मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचान रही है, मेरी आवाज सुनकर मेरे पीछे नहीं आ रही है। हम किसकी आवाज जानते हैं? बहुत सारी आवाज है दुनिया में, हम उसको पहचान लेते हैं, लेकिन प्रभु की बात पहचानने के लिए कई लोगों का कहना है कि हमने कभी प्रभु की बात नहीं सुनी, प्रभु ने कभी हमको आवाज नहीं दिया, प्रभु ने हमसे कभी बात नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बातें करेगा। ये पढ़ो और विश्वास करो, वो बोल रहा है, उसकी आवाज सुनो। यदि आज उसकी वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर मत करो, जैसे विद्रोह के दिनों में हुआ था। विद्रोह का दिन कब हुआ? जब परमेश्वर अपनी प्रजा के अति निकट चल रहा था। दूसरे शब्दों में कहा गया है, कौन ऐसा राष्ट्र है जिसका परमेश्वर उसके इतना नजदीक चलता है? निश्चय ही वह इस्राएली प्रजा है, निश्चय ही हम आप विश्वासी लोग हैं जिनका परमेश्वर जिनके नजदीक चलता है। प्रभु यीशु ने कहा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा हो जाओ, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। आकर जाऊंगा नहीं, मिलकर जाऊंगा नहीं, निवास करूंगा।
आगे प्रभु कहता है, इस पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर, जो प्रार्थना करोगे निश्चित ही दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु को पता था कि वह समय आ रहा है कि जब दो व्यक्ति भी एक मत होकर रहने वाले नहीं हैं। आज वही चाल चली है शैतान ने, दो या दो से अधिक। सबसे पहले पति पत्नी, अधिक बच्चे। मैं एक परिवार को जानता हूं, अब सुधर चुका है, लेकिन जब कुछ साल पहले परिवार में 4 लोग, बड़ा घर, सबको अपना अपना कमरा, 4 लोगों के पास 6 गाड़ी। और ऐसे व्यक्ति से जब मिला, उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी सालों से मुझे बात नहीं करती, बेटा रात को हमेशा कब आता है कब जाता है पता नहीं, बेटी का मुंह हमेशा टेढ़ा रहता है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि मैं कुछ शराब की बोतलें लाता हूं और उसमें अपना दिन बिताता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता नहीं कैसे मेरे मन में प्रश्न आया। चर्च के पास मिले थे, मैंने कहा चर्च आप लगता है रोज आते हैं? नहीं नहीं, रोज नहीं आता हूं, क्रिसमस और ईस्टर को आता हूं, कोई मित्र रिश्तेदार मर गया तब आता हूं। हालेलुया। मैंने बोला आज कौन मर गया था? नहीं, बोलते मेरे रिश्तेदार की 7वें की मिसा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा फिर आपके परिवार के सदस्य आप किसके साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं? जब आप अपने परमेश्वर को नहीं चाहते तो आपकी पत्नी आपको क्यों चाहेगी? जब आप अपने पिता को भूल गए हैं, आपका बेटा आपको भुला दिया है, तो कौन सा गुनाह है? जब आप अपने निर्माता की तरफ नहीं मुड़ सकते तो आपकी बेटी आपकी तरफ मुंह क्यों घुमाएगी? बहुत खराब लगा। उन्होंने बोला तेरे से मैंने बातें किया, कुछ अच्छी बात करेगा तो मुझे ताना मार रहा है, मुझे टोच रहा है। मैंने कहा टोच नहीं रहा हूं, आप सो गए हो, आपको जगा रहा हूं। नींद से उठो, प्रभु पर भरोसा करो, प्रार्थना में लग जाओ। थोड़ी देर बड़बड़ करने के बाद उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा एक रिट्रीट को जाओ। उन्होंने एक रिट्रीट किया। रिट्रीट करने के बाद जैसे आए, उन्होंने अपनी पत्नी से क्षमा मांगा। पत्नी को लगा अरे एक पत्थर सा आदमी, 35 साल हो गया शादी करके, कभी सॉरी नहीं बोला था जिंदगी में, ये मेरे पैर छू के मुझसे माफी मांग रहा है, इसको हुआ क्या? भाई और बहनों, धीरे धीरे पूरे परिवार ने रिट्रीट किया, पूरा परिवार बदल गया। ताली बजाइए प्रभु, इतना महान है परमेश्वर। हम उसको छोड़कर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 में कहा, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझसे अलग रहकर वह कार्य तुम कुछ नहीं कर सकते जिसपे तुम्हारा जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रभु से जुड़ना है, हृदय की कठोरता को दूर करना है, सब प्रकार का हठ धर्म अपने आप से अलग करना है। मैं मराठी अनुवाद पढ़ रहा था पिछले रीडिंग में, पिछले संडे को शायद रीडिंग था। एक ताठवानी के लोग हैं, टेढ़ी गर्दन वाले, हिंदी अनुवाद है कि टेढ़ी गर्दन वाले लोग हैं। टेढ़ी गर्दन का मतलब क्या होता है मालूम है? टेढ़ी गर्दन वाला को इधर देखना होगा ना, मुंह इधर घुमाना पड़ता है, हमेशा वो टेढ़ा देखता है। प्रभु कहता है ये टेढ़ी गर्दन वाले लोग हैं। कौन से टेढ़ी गर्दन वाले लोग हैं? जो उस दिन के ज्ञानी थे, जो बुद्धिमान थे, जो अपने आप को धर्मी और प्रभु के लोग समझते थे। ऐसे लोगों से प्रभु कहता है कि टेढ़ी गर्दन वाले लोग हैं। हमको लगता है कि हमारा गर्दन सीधा है, हम अपने आप को जांचे, हमारा गर्दन और भी ज्यादा टेढ़ा है। हमारे पास इतने सारे साधन सुविधा हैं,
कोई ऐसा धर्म नहीं है जिनको धार्मिकता की इतनी बातें और इतनी बारीकी से सिखाई जाती हो। क्योंकि मैं हिंदू धर्म से हूं, मुस्लिम लोगों के यहाँ बहुत बार गया अपनी समस्याओं से निकलने के लिए। मेरी समझ में एक ही आता था कि शायद हम सब बर्बाद होने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पास आने के बाद पता चला कि अपनी बर्बादी के कारण खुद हम हैं। अगर कोई बर्बाद हो रहा है तो वह का दोष अपने आप में ढूंढे। निश्चित ही जिस दिन अपने आप में गलतियां ढूंढ देगा उस दिन प्रभु से आशीष और कृपा प्राप्त करेगा। पश्चाताप करके वो प्रभु से एक हो जाएगा और अपने जीवन में रोज नया नया अनुभव करेगा। मैं आपसे कहता हूं, मैंने 8 साल अति गरीबी में बिताया। 8 साल अति गरीबी में बिताया। दिन भर काम करके 100 रुपया बैंक में जमा करता था बच्चों की फीस के लिए, और उसके बाद पेट्रोल डाल लेता था। कुछ बच गया तो राशन पानी लेकर जाता था। रोज का कमाना, रोज का खाना था। प्रभु से 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु इस रोजगार से मुझे निकाल कर कोई अच्छा रोजगार दे दो। प्रभु ने कहा तुम ऐसे ही ठीक दिखते हो। मुझे करने कहा प्रभु आप क्यों हमें गरीब देखना चाहते हैं? प्रभु ने दर्शन में दिखाया कि इतना खाना दूंगा कि खा नहीं सकोगे। वैसा ही हुआ। प्रभु ने छोटी सी आमदनी पर आशीष दिया। बच्चे पढ़ लिख कर काम करने लगे। जैसा कि भाई ने बताया 8 मेरे बच्चे हैं, भाई गुजर गया मैं तो उसके बच्चे हैं। 10 बच्चों की पढ़ाई लिखाई उस रिक्शे की कमाई से हुई। बड़ा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है, दूसरा नंबर सेमिनरी में है, तीसरा नंबर HR की नौकरी करता है भाईंदर में, छोटा है और टाटा सर्विस सेंटर में काम करता है। भाई का बेटा है एक अच्छी कंपनी में है, दूसरा एयरटेल में है, बेटी टीचर है, 2 बेटियां पढ़ाई कर रही हैं। प्रभु ने सबको पढ़ाया, सबको बनाया। इसलिए हमारे पास क्या है? संत पौलुस कहते हैं कि न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाने को मिलेगा। यदि तुम्हारे पास भोजन वस्त्र है उसमें संतुष्ट रहो, परमेश्वर की भक्ति करो, वो निश्चित ही आपका नाम ऊंचा करेगा। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, आंख बंद कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। प्रभु चाहता है कि हम अपने हृदय की कठोरता दूर करें। प्रभु ने प्रार्थना करते समय मुझे दिखाया था कि लंबे समय से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा है, शराब नहीं छोड़ पा रहा है, क्षमा नहीं कर पा रहा है, सालों साल पाप स्वीकार को नहीं जा रहा है। इस समय हम प्रभु से दया की याचना करें कि हे प्रभु अपनी दया और आशीष हम सब पर प्रकट कर, जिससे हम अपने आप को जांच सके, अपने आप को पहचान सके और अपने हृदय को बदलने के लिए तेरे चरणों में आ सके। पिता यह प्रार्थना हम आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद प्रतिराज भाई, जिसे आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया है। अब हम हमारे दिल की तैयारी करेंगे। प्रभु आज हमसे बात कर रहे हैं, जिसे वचन के द्वारा इब्रानियां 3:15, इब्रिकरस पत्र 3:15, जर आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकत असाल तर आपलं हृदय कठोर करू नका। आपण तयारी करत आहोत, नम्र होऊन प्रभूच्या समोर येऊया. Let's humble ourselves and come before the Lord. You want to stand, you want to just come on your knees this time. आपण गुडघ्यावर येऊ शकता, आपण उभे राहू शकता, आपले हात आपल्या समोर उभे करूया. प्रभूची कृपा आपल्याला या क्षणाला लाभत आहे.
Let us receive God's grace. Wonderfully we have heard this evening. The Lord has been speaking to us. He's been knocking on the door of our heart. आपल्या हृदयाच्या दरवाज्यावर तो सतत ठोकत आहे. काही असेल ज्यामुळे आपण अजूनही प्रभूची वाणी ऐकत नाही. आपण काही गोष्टी घट्ट धरून ठेवलेल्या आहेत. We have been stubborn, not letting, not surrendering to God. विशेष करून राग असेल, क्षमा करण्यासाठी प्रभू आपल्याला सांगत आहे, पण आपण सांगत आहोत मी नाही करणार. काही गोष्टी सोडण्यासाठी सांगत आहे, पण अजूनही आपण त्या धरून ठेवलेल्या आहे. प्रभू आपल्याला साथ घालत आहे. The Lord is calling to you. Listen to His words. तुमच्या अंतःकरणाशी तो आज बोलत आहे. त्याची वाणी ऐका, त्याच्याकडे जवळ या. आणि तो सांगत आहे मी तुम्हाला विसावा देईन. Come, I will give you rest. You are disturbed, you are depressed, you are going through difficult times, you are struggling. Come to me. माझी हाक ऐका. Come to me. I will give you rest. मी तुम्हाला विसावा देईन. Thank you, Lord. Praise Jesus. तो सांगतो फिरा,
टर्न अँड लिव्ह. माझ्याकडे या आणि जगा. मी जीवन आणि परिपूर्ण जीवन देण्यासाठी आलेलो आहे. सैतान नाश घात करण्यासाठी आलेला आहे, परंतु मी तुम्हाला परिपूर्ण जीवन, मैं आया हूं ताकि आप परिपूर्ण जीवन पाओ. थैंक यू जीसस. प्रेज गॉड. हमारे हैं प्रभु. This is the moment the Lord wants to come into your heart, brothers and sisters. If you have invited Him, then He will surely come. Open the door of your heart this evening for Him. Revelation 3:20. I am knocking at the door of your heart. मी तुमच्या हृदयाच्या दरवाज्यावर ठोकत आहे. कोणी जर माझी वाणी ऐकत असेल आणि त्याचं हृदय कठोर करत नसेल, माझी वाणी ऐकून जर त्याने दरवाजा उघडला तर मी आत येईन, मी त्याच्याबरोबर राहीन, त्याच्याबरोबर भोजन करीन. ओपन द डोर ऑफ युअर हार्ट and let Jesus in. He will handle everything. तो तुमचं सर्व जीवन हाताळणार आहे. Nothing is difficult, nothing is impossible with our God. त्याच्यासाठी काहीच अशक्य नाही. Hallelujah. Praise you, Jesus. प्रभूला आपल्या हृदयामध्ये बोलूया. संत पौल म्हणतो रोमकरसपत्र 10:9, जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील की येशू प्रभू आहे आणि आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील की तो मरणातून उठला तर तुझं तारण होईल. कन्फेस विथ युअर माउथ and believe in your heart that Jesus is the Lord of your life. प्रभूला आपल्या अंतःकरणामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये आपला प्रभू, आपला तारणारा, आपला एकमेव मुक्तिदाता म्हणून स्वीकारा. प्रभु को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता, आपका उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा. तो तुम्हाला तारीख कोणत्याही संकटामध्ये, दुःखामध्ये, आजारामध्ये तुम्ही असाल, आज या संध्याकाळी तारणारा तुमच्या मध्ये उभा आहे, तुम्हाला हात देत आहे. कोणत्याही समस्यामध्ये तुम्ही बुडत आहात, तो तुम्हाला खेचून बाहेर काढण्याची सामर्थ्य, शक्ती त्याच्यामध्ये आहे. हाक मारा त्याला, सांगा येशू मला तुझी गरज आहे. जीसस, आय नीड यू, हेल्प मी, आय नीड यू जीसस. थँक यू लॉर्ड.
Praise you, Jesus. Hallelujah. Jesus, praise you. प्रभु आओ, मेरे हृदय में बस जाओ। प्रभु आओ, मेरे हृदय में बस जाओ। प्रभु आओ, मेरे हृदय में बस जाओ। प्रभु आओ, सब मिलकर गाएंगे। तेरे बिना प्रभु लाचार हूँ मैं, लाचार हूँ प्रभु तेरे बिना, प्रभु तेरे बिना, तेरे बिना प्रभु लाचार हूँ मैं, लाचार हूँ प्रभु तेरे बिना, प्रभु तेरे बिना। प्रभु आओ, मेरे हृदय में बस जाओ। ये मुकेश जी, मैं प्रभु कब से तरस रहा प्रभु तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए। मैं प्रभु कब से तरस रहा प्रभु तेरे लिए, प्रभु तेरे लिए। प्रभु आओ, मेरे हृदय में बस जाओ। प्रभु आओ, मेरे हृदय में बस जाओ। Come, Lord Jesus, we invite you. Come into the crisis, Lord. Come into, Lord, into our families, into all the problems that we are in. Lord, come, Lord, and save us. ये प्रभू येशू ये आमच्या स्थितीमध्ये तू प्रवेश कर आणि या स्थितीतून आम्हाला बरोबर बाहेर काढ प्रभू. आमचं तारण कर प्रभू, आम्हाला मुक्ती दे प्रभू. येशू ये आम्हाला तुझी गरज आहे. मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, कैसे रहूं प्रभु तेरे बिना, प्रभु तेरे बिना। मैं हूँ तेरा, तू है मेरा, कैसे रहूं प्रभु तेरे बिना, प्रभु
Come, Holy Spirit. Spirit of Jesus, come. ये यीशुच्या आत्म्या ये स्पर्श कर आणि आरोग्य दे आज. कष्टी भाराक्रांत आम्ही तुझ्याकडे आलो आहोत. Weary and heavy laden with burdens, tensions, anxieties, sicknesses, Lord, we have come. Come, Holy Spirit. You who make everything new. ये आमच्यावर ये आणि सर्व आमची जीवनाची परिस्थिती नवीन बन. Renew the face of our lives, our families. नूतनीकरण प्रभू आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या कुटुंबामध्ये, आमच्या हृदयाचं परिवर्तन घडवून आण प्रभू. Transform our heart, our lives, make us new. I encourage everyone to stand this time. Just put your hand on that part of your body wherever you feel you need healing. आपला उजवा हात आपल्या शरीराच्या त्या भागावर ठेवा जिथे तुम्हाला आरोग्याची गरज आहे, चंगाई की जरूरत है. आपका दाहिना हाथ उस जगह पे रखिए. प्रभु का स्पर्श, आपकी चंगाई महसूस कीजिए. प्रभु इस समय जैसे हमारे भाई ने कहा 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो वहां मैं हूं. प्रभु यीशु इस समय आपके बीच मौजूद है और उसी सामर्थ्य से, जिस सामर्थ्य से वो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर चले, the same power that is present in our midst to heal you, deliver you, set you free. Come, Holy Spirit, we need you. Come, sweet Spirit, we pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. पवित्र आत्मा तू आजा. सब मैं प्रार्थना करूं अपनी शक्ति में आजा. अपनी नम्रता से ये पवित्र आत्मा तू ये ही प्रार्थना करो. ये अपनी शक्ति ये अपना सौम्य हालेलुया 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 हालेलुया. संत आहे येशूच्या पवित्र नावाने, त्याच्या पवित्र रक्ताने येशू या क्षणाला प्रत्येक आजार, प्रत्येक दुखणं, त्रास, विकार, कोणत्याही प्रकारचं आजार असो, येशूच्या पवित्र नावाने, त्याच्या पवित्र रक्ताने आम्ही अधिकार घेतो, रोग करतो, निघून जातो. Be removed by the name of Jesus and the precious blood of Jesus. We cast you every power of darkness, evil, every blocks in the body, every disease, every sickness has to go in the name of Jesus. I set every brother and sister free in the name of Jesus. येशूच्या नावाने प्रत्येक भाऊ बहिणीला मुक्त करतो. The blood of Jesus sanctifies you, heals you, sets you free. Glory to God. Shantari bene 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 bene. Eri eri eri. प्रभु या क्षणाला अनेकांना त्याच्या शांतीने भरत आहे. He's filling you with His peace right now. There are few people who are receiving healing for their joint pains, knee pain, shoulder pain,
सांधे दुखी, गुडघे दुखी, जोड दुखत आहे, प्रभू आरोग्य देत आहे. छातीमध्ये त्रास आहे, चेस्ट कंजेशन, the Lord is healing right now. If you're feeling sick, if you're feeling something heavy on your chest, claim the healing Lord sisters. Heart problems. Many of you feeling very tired. Right now the Lord is healing you, giving you strength. Some people are praying for their children, for their studies. The Lord is blessing you. Just receive by faith. Lord, I want to be blessed. प्रभु मला अभ्यासामध्ये आशीर्वादित कर. Bless me, Jesus, with wisdom, with knowledge, to study. Financial difficulties. The Lord is opening doors. विशेष करून नोकरी किंवा चांगल्या नोकरीच्या शोधामध्ये आहात. कर्ज आहे, प्रभू मार्ग बनवत आहे. आज प्रभूने सांगितलेलं आहे, तुम्ही माझकडे या, संशय धरू नका. डू नॉट डाऊट, ट्रस्ट इन. तो तुमच्यासाठी मार्ग उघडत आहे, उघडलेले आहे. आणि अनेक समस्या प्रभूने या क्षणाला या संध्याकाळी दूर केलेल्या आहेत. आम्ही दोन्ही हात उंच करूया. लेट अस लिफ्ट बोथ आवर हँड्स एंड जस्ट कीप थँकिंग द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise you, Jesus. धन्यवाद यीशु for healing me, for filling me with your peace. Thank you, Lord. I praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा धन्यवाद. परमेश्वर पिता धन्यवाद. हालेलुया, 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 हालेलुया. जोरदार ताली प्रभुच्या आभार. Thank you. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God is good All the time. and all the time. God is good. बसून घ्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So आज आपण आपल्या बंधू पतिराज यादव यांच्या मुखातून आपण प्रभूचा शब्द ऐकलेला आहे. त्यांनी स्वतःची त्याची साक्ष सुद्धा दिलेली आहे आणि त्याद्वारे आपल्याला शब्द त्यांनी सांगितलेला आहे की कठोर मानीचे बनू नका. डू नॉट बी स्टिफ नेक. तेडी गर्दनवाले मत बनो. डू नॉट बी स्टिफ नेक. ताट मानीचे बनू नका, परंतु ऐकणारे बना. जर आपण बायबल वाचत नाही, जर आपण प्रार्थना करत नाही, जर आपण मिसेला आपण बरोबर आपण भाग घेत नाही, म्हणजे आपण कुठेतरी ताट मानीचे झालेलो आहोत. आणि आपल्याला विचार करण्यासारखा शब्द आपल्या बंधूने आपल्यामध्ये आज हिंदी भाषेमध्ये प्रकट केलेला. परंतु मला वाटत आहे वेदर इंग्लिश, मराठी, हिंदी सबको समझ में आई. प्रेज द लॉर्ड. सो थैंक यू ब्रदर जी. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका परिवार बहुत आशीष से भरा रहे. वन ऑफ हिज सन, इनके एक सुपुत्र जो है वो फादर बनने के लिए गए हैं, जैसे ब्रदर ने बताया. अभी वो हाल ही में आए थे, मैंने उनसे मिला, जो बनारस ग्वालियर डायसिस में वो पढ़ाई ले रहे हैं. सेमिनरी में है ग्वालियर डायसिस में, ताकि वो एक अच्छे धर्मगुरु बने. इन्होंने येशू को अनुभव लिया है और येशू के साथ प्रभू येशू त्यांनी अनुभव घेतलेला आहे आणि येशूचा स्पर्श तयार झालेला आहे. तर एक मुलगा गेलेला, दुसरा मुलगा यांचा वायू फोर्स युथ युनायटेड फॉर क्राइस्ट. काल एक सुंदर संध्याकाळ म्युझिकल इव्हनिंग, काल गास चर्च, सेंट वत्सल गार्सिया चर्च गास, यहाँ पर एक सुंदर एक म्यूजिकल इवनिंग था. और वायु फोर्स से जो वसे डायसिस में, तो उनके कोऑर्डिनेटर इनके बेटे हैं सत्य प्रकाश यादव. तो वो भी, तो हम प्रभु को तालियां बजाएंगे इनके परिवार के जो काम कर रहे हैं. और पहले वो हर मंडे को वहां पर आकर खड़े रहते थे. वो मुझे याद है अभी भी कि वो वहां पर आते थे. और अभी वो खुद उनके मिनिस्ट्री में बिजी हैं. वो जानकी पाड़ा में, मोहिता पाड़ा में
वहाँ पर उनके जोर से प्रार्थना चलती है और वैसे सर्विस टीम के भी वो सदस्य हैं और आज उन्होंने हम चाहेंगे कि आप और भी हमें आगे प्रभु का शब्द फ्यूचर में भी सुनाएं. So brothers and sisters, as we can see on the screen, after a break of 2 years, 2 वर्षाच्या आपण लॉकडाऊन मुळे आपण रिट्रीट घेऊ शकलो नाही, परंतु आता आमची पहिली रिट्रीट लॉकडाऊनच्या नंतर आम्ही गेल्या 20-22 वर्षापासून रिट्रीट दर वर्षाला 1-2 घेत असतो, परंतु 2 वर्षामध्ये आपण घेऊ शकलो नाही. तर येणारा ऑक्टोबर महिन्याच्या 28 ते 30 तारखेपर्यंत देयर इज अ 3 days रेसिडेन्शियल रिट्रीट रिवाइव आध्यात्मिक नूतनीकरण व आंतरिक आरोग्याची रिट्रीट मराठी व इंग्रजी भाषामध्ये आहे. इट विल बी बायलिंग्वल, मराठीमध्ये असणार आणि इंग्रजीमध्ये, सो दॅट बोथ काइंड ऑफ पीपल कॅन बी अटेंड द रिट्रीट. तर यामध्ये आपण ते रिट्रीट घेणार आहोत. मराठी व इंग्रजी पसायला नाले. तर इकडून जाण्याचा येण्यासाठी आम्ही बसची व्यवस्था आम्ही करणार आहोत. पार्वती क्रॉस पासून बस जाणार आहे आणि इट विल टेक यू टू दॅट रिट्रीट हाऊस अँड इट विल ब्रिंग यू बॅक. सो इट बिगिन्स ऑन 28th मॉर्निंग अँड विल गेट ओव्हर ऑन 30th इव्हनिंग. आणि त्याच्यासाठी मूल्य 1000 rupees ओनली, विच विल इन्क्लूड एव्हरीथिंग. Your stay, the food and the traveling, everything will be included in 1000 rupees. So you please register, कारण there will be limited seats. कारण तिथे आपण इकडे ऍडजस्ट करू शकतो, पुढच्या इकडे एक्स्ट्रा लावा किंवा फर्स्ट रेला असतो, लोक वाढले तर आपण ऍडजस्ट करतो, पण तिकडे राहण्यासाठी आहे. तो वी कॅनॉट टेक मोर पीपल दॅन लिमिटेड. सो वी विल बी टेकिंग अराउंड 50 people. So we have to just see how many can come. So please register at the earliest. लवकरात लवकर तुम्ही तुमचे नाव नोंदणी करा आणि लीना सिक्वेराकडे तुम्ही तुमचे नाव देऊ शकता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Very soon we are going to celebrate Grace Ministries anniversary. या महिन्यामध्येच 21 तारखेला ग्रेस मिनिस्ट्रीचे 23 वर्ष पूर्ण होत आहेत. 23 years will be completed on the 21st of September. So we are thanking God for this, and in the next 2 weeks, म्हणजे 26 तारखेला on the 26th we are going to have the celebration. 26 तारखेला या महिन्याच्या सोमवारी आपण एक सेलिब्रेशन करणार आहोत. So on that day, on 26th Monday, we will have prayer meeting upstairs. लोयोला हॉल मध्ये आपण त्या दिवशी प्रार्थना घेणार. त्या सोमवारी म्हणजे 26 सप्टेंबरला लोयोला हॉल मध्ये आपण प्रार्थना घेणार आणि तिथे there will be some musical evening, as well as there will be celebration, and there will be some dance, there will be a musical skit, so and some program will be there, so which you will want to attend and don't miss. So I'm telling 26th, please see that you attend with your friends, with your full families. तुम्ही 26 तारखेला या आणि त्याचा तुम्ही अनुभव घ्या, because it is going to be a beautiful evening of singing, of music, of skit and dance and much more. Praise the Lord. तुम्ही 26 तारखेला या. ज्यांना प्रार्थनेची गरज आहे शेवटच्या गाण्यानंतर तुम्ही पुढे या, तुमच्यासाठी प्रार्थना केली जाईल. आणि यू कॅन राईट ऑन एनी प्रेयर इंटेन्शन यू हॅव, यू कॅन पुट इट इन दॅट बॉक्स. आणि त्यासाठी आम्ही आमची मध्यस्थीची टीम प्रार्थना करत असते. नाहीतर तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्ही सुद्धा तुमचे प्रार्थनाची विनंती तुम्ही पाठवू शकता. प्रेज द लॉर्ड. सो वन्स अगेन थँक्यू ब्रदर पृथ्वीराज. आणि आपण शेवटचं गाणं घेऊया वगैरे. Jesus,
सी यू अगेन नेक्स्ट मंडे. एकमेकांना प्रभूची शांती द्या, प्रभूचं प्रेम एकमेकांबरोबर शेअर करा, काही लोकांबरोबर भेटा, स्माइल द्या, विश वन अनदर, and then go. Good night. God bless you. Thank you.